پہنچ گیا ہے. ایسا بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً 3:15 بجے لینڈ کرے گا. تو اب اہم خبر آ رہی ہے اور سب سے پہلے سما اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہے. آصف علی زرداری کا طیارہ کراچی پہنچ گیا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. 23 دسمبر جس تاریخ کا انتظار کیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کے جیالوں کی جانب سے, وہ تاریخ بھی آ گئی اور آصف علی زرداری اب کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ بھی کر گئے ہیں. وقاص باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تفصیل جان لیتے ہیں. وقاص, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, پیپلز پارٹی کے شریک ہیں آصف علی زرداری. جون 2015 کی خود ساختہ جی بالکل پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری جون 2015 سے خود ساختہ ضلع وطنی ختم کر کے اب وطن واپس پہنچ گئے ہیں. آصف علی زرداری نے اپنی وطن روانگی بیرون ملک روانگی سے پہلے ایک اہم تقریر کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں, ہم کو یہاں رہنا ہے. ایسی ایک متنازع تقریر کے بعد آصف علی زرداری کو وطن چھوڑنا پڑا تھا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قیادت کے خلاف کیسز کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا تھا, پھر گرفتاریاں سلسلہ شروع ہوا تھا. اب جبکہ صورتحال سیاسی طور پر آصف علی زرداری کو سازگار معلوم ہوئی ہے تو آج آصف علی زرداری وطن واپس پہنچ چکے ہیں اور اب سے چند منٹ پہلے اولڈ ٹرمینل پر آصف علی زرداری کا طیارہ لینڈ کر چکا ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی دوسرے خصوصی طیارے کے ذریعے آصف علی زرداری کے ہمراہ کراچی کے اولڈ ٹرمینل پر لینڈ کر چکے ہیں, جہاں پر پیپلز پارٹی کے مرکزی اور صوبائی رہنماؤں, سابق وزرائے اعظم, وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے آصف علی زرداری کا استقبال کیا. آصف علی زرداری اب سے کچھ دیر بعد جلسے گاہ پہنچیں گے. اس دوران وہ کراچی ایئرپورٹ کے اولڈ ٹرمینل لاؤنج میں پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کریں گے اور تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا, جس کے بعد آصف علی زرداری قافلے کی صورت میں اولڈ ٹرمینل سے جلسے گاہ آئیں گے. جو یہ اسٹیج بنایا گیا ہے, یہ اسٹیج وہی جگہ وہی ٹرک ہے جو 18 اکتوبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے استقبال جس ٹرک پر کراچی میں آمد ہوئی تھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ٹرک پر کراچی کی سڑکوں پر سفر کیا تھا. اگر بات کی جائے جلسہ گاہ کی, اولڈ ٹرمینل پر جو بنایا گیا جلسہ گاہ ہے, اسٹیج پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر شدید بدنظمی دیکھی جا رہی ہے. جیالے ہیں جو پورے سندھ سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ اسٹیج کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس دوران جو ہے وہ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کو بھی جو ہے وہ دھکوں کا سامنا کرنا پڑا. پیپلز پارٹی کی قیادت کا جیسا کہ دعویٰ تھا کہ یہاں پر لاکھوں کا مجمع ہوگا, جلسے گاہ میں جو پنڈال سجایا گیا ہے اس میں ابھی تک ایسی کوئی خاطر کو بڑی تعداد نہیں ہے, وہ کہ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ جو ہے وہ تعداد بڑھ رہی ہے. آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری, ان کا طیارہ کراچی پہنچ چکا ہے. بلاول بھٹو بھی ان کے ساتھ ہی ہیں, پیپلز پارٹی کے ارکان بھی یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کارکنان بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں. اب سے تھوڑی دیر بعد اولڈ ٹرمینل سے آصف علی زرداری نکلیں گے اور جہاں جلسہ گاہ پہ آئیں گے اور یقیناً یہاں پر جو پارٹی کے جیالے ہیں ان سے ملاقات بھی کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آئی جی سندھ کی رخصت پر کوئی بیان نہیں, راؤ انوار کو کلین چٹ دینے پر کوئی ٹویٹ نہیں, لیکن ابو کی وطن واپسی پر بلاول بھٹو نے فوراً پیغام دے ڈالا. ٹویٹر پر لکھا ہے, ایک زرداری سب پر بھاری, شروع ہو گئی ہے رائیونڈ والوں کی الٹی گنتی. بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹر پیغام سامنے آ گیا ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پر بھاری. لیکن سوالیہ نشان تو یہ بھی ہے کہ آئی جی سندھ کی رخصت پر تو کوئی بیان نہیں آیا, راؤ انوار کو کلین چٹ دینے پر بھی کوئی ٹویٹر پیغام نہیں, لیکن ابو آ رہے ہیں وطن واپس تو بلاول بھٹو نے فوراً دے ڈالا ہے ٹویٹر پیغام اور ٹویٹر پر لکھا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری, شروع ہو گئی رائیونڈ والوں کی الٹی گنتی. بات کر رہے ہیں آصف علی زرداری آج پہنچے ہیں کراچی. اب سے کچھ ہی لمحوں پہلے انہوں نے لینڈ کیا ہے کراچی ایئرپورٹ پر اور اس کے لیے بھرپور تیاریاں پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جا رہی ہیں. مختلف علاقوں میں کراچی کی اہم شاہراہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹولے بنا کر جیالے موجود ہیں اور آصف علی زرداری کو ویلکم کہنے کے لیے یہاں پر انتظار کریں آصف علی زرداری کا. تنویر بہلین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں اور لوگوں کا جوش و خروش کیسا دیکھ رہے ہیں. تنویر. جی بالکل, ایک جلسہ تو پنڈال اولڈ ٹرمینل پر ہوگا مگر دوسرا جلسہ اس وقت اسٹار گیٹ پر ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر کارکنان جالوں کی بہت بڑی تعداد, کثیر تعداد میں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جالوں کا کلر ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. خواتین, بچے, بزرگ سبھی آصف زرداری کو ویلکم کرنے کے لیے موجود ہیں. کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. اندرون سندھ کراچی سمیت مختلف قافلے یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کارکنان کا جو جوش ولولہ ہے اور مزید اس میں تیزی آتی جا رہی ہے. کارکنان کا کہنا ہے کہ
अपने महबूब कायद आसिफ अली जरदारी का खिताब सुनेंगे और उनके खिताब के बाद अगला लाइमल तय करेंगे। इस वक्त हम ये अगर बात स्टार गेट की तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम के भी मनाजिर देखने में आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना शुरू हो गई है, क्योंकि इस वक्त जो पार्किंग की गई थी ज्यादातर बसें आई हैं, तो उसकी वजह से जो पार्किंग खत्म होने के बाद बसें मेन रोड पर आ गई है। इस वक्त स्टार गेट पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों को गुजरने की जगह नहीं मिल रही है। अगरचे ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की तादाद तकरीबन 1000 से ज्यादा बताई जाती है, मगर वो कहाँ है नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक को क्लियर करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर जो कारकुनान है उनके जोश उभरने की बात की जाए तो यकीनन काबिले दीद है। जी ठीक है, तनवीर हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। स्टार गेट से आप हमें आगाह कर रहे हैं, जहां कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग भी अपने महबूब कायद को वेलकम करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और अंदरूने सिंध से भी काफिले यहां पर पहुंच चुके हैं। ये स्टार गेट के मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कारकुनान यहां तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ ओल्ड टर्मिनल भी उनको जाना है, जहां आसिफ अली जरदारी ने जलसे से यकीनन खिताब भी करना है। जी हाँ, जलसा गाह की सूरत हाल क्या है, जैसे कि फवाद आप जिक्र भी कर रहे हैं, तो वहाँ मौजूद है समा के नुमाइंदे वकास बाकर, उनसे बात कर लेते हैं। वकास बाकर, आप बताइएगा जलसा गाह में कितना जोशो खरोश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन मुफाहिमत के बादशाह, जियालों के लिए सियासी जादूगर आसिफ अली जरदारी कराची पहुंच चुके हैं और जियालों का जोशो खरोश अपनी जगह काबिले दीद है। पार्टी रहनुमा हैं जो पार्टी तरानों के साथ और नारों के जरिए जियालों का जोश गरमाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ओल्ड टर्मिनल से लेकर स्टार गेट तक जो शाहरा है उस पर जलसेगाह बनाई गई है। वसीउ अरीज पिंडाल है, बहुत बड़ी तादाद में जियाले आए हैं, लेकिन इस समांतर जो वसीउ अरीज पिंडाल है उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि जियाले कम नजर आ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, बल्दियाती चेयरमैन, उनकी जानिब से जो खैर मकदमी बैनर लगाए गए, लगता है कि उनका मुकाबला है। पीपल्स पार्टी के तमाम इलाकों से जो कारकुनान यहाँ पर पहुंचे, हर एक के हाथ में हर एक अपने अपने जो मकामी रहनुमा है उसके नाम का खैर मकदमी बैनर है। अगर बात की जाए स्टेज की तो यहाँ पर स्टेज पर जो मरकजी रहनुमा भी पहुंच चुके हैं। पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क़यादत है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, एतजाज है, कमर दमान कायरा, खुर्शीद शाह और दीगर लोग हैं, वो ओल्ड टर्मिनल पर मौजूद हैं। स्टेज के और पंडाल के दरमियान का जो हिस्सा है वहां पर जो है पीपल्स पार्टी के रजाकार और जानिसारान बेनजीर यहाँ पर मौजूद है। और जो यहाँ पर जो आपसे कुछ देर पहले जानिसारान बेनजीर और जो पीपल्स पार्टी के रजाकार हैं वो आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए, जबकि स्टेज के करीब आगे बढ़ने की कोशिश में भी पीपल्स पार्टी के जियाले एक दूसरे पर चढ़ दौड़े और लाठियों का भी इस्तेमाल हुआ। तो जलसेगाह में इस वक्त शदीद बदनज़मी है। कारकुनान का जोशो खरोश अपनी जगह है, कारकुनान की तादाद मुस्तकिल बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कोशिश है कि वो पार्टी तरानों के जरिए जियालों का जोश गरमाने की कोशिश करें। और मेरे सामने भी जो यहाँ पर अभी एक और वाक़या जो यहाँ पर जियाले आपस में एक दफा फिर लड़ पड़े, तो सूरत हाल पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की यहाँ पर हैरत अंगेज बात यह है कि कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद है जो आगे आना चाहती है, रजाकार है, जानिसारान बेनजीर है, लेकिन पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा रहनुमा यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, कोई रुकन कौमी असम्बली, कोई सूबाई वजीर दिखाई नहीं दे रहा जो यहाँ पर आता और कारकुनान को समझाता। इसी वजह से सूरत हाल बदनज़मी का शिकार हो रही है। पीपल्स पार्टी के तमाम मरकजी रहनुमा, अरकान कौमी और सूबाई में मौजूद है, लेकिन स्टार गेट पर भी जियाले हैं और उनके दरमियान तनवीर बहलीम मौजूद है। तनवीर, आप बताइएगा, वकास बता रहे हैं कि वहाँ तो कोई मरकजी क़यादत या कोई पीपल्स पार्टी का रहनुमा नहीं है कि जो जियालों को समझा सके कि वो बदनज़मी न करें। क्या आप जहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है? देखिए, एक इंतजाम पुलिस की जानिब से किए गए थे, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की जानिब से, दूसरे इंतजामिया की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर बदनज़मी देखने में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग आ चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और कारकुनान यहाँ पे मौजूद है और यहीं पर बातें करते हैं, जोश बलबले नारे लगाते हैं। कुछ खवातीन है, उनसे बातचीत करते हैं। आप हिंदू कम्युनिटी की ताल्लुक रखती है, क्या पैगाम देगी आसिफ जरदारी को आज? क्या पैगाम दोगी आज? जरदारी को यही देंगे कि हमारी पाकिस्तान जल्दी अच्छी बना दो आप। देखिए, यही पैगाम देंगे कि आज आसिफ जरदारी पाकिस्तान को एक अच्छा पाकिस्तान बना दें, क्योंकि जिसका कायदे हमने देखा था यहाँ पर कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन हम ये बताते चले कि वो अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि शायद उनको ज्यादा मजा आ रहा है। लाउड स्पीकर पे पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं, जिन पर वो पालेला रक्स करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं, मगर इसके साथ साथ जैसे जैसे कारकुनान की तादाद स्टार गेट में बढ़ती जा रही, तो उसकी वजह से जो शारे फैसल है
जो रफ्तार गाड़ियों की वजह से मशहूर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी अब गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी होना शुरू हो गई है, क्योंकि एक तो पार्किंग की वजह से और दूसरा लोगों की बहुत बड़ी तादाद अब मेन सड़कों पे आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो गुजरने वाले शहरी हैं उन्हें जरूर अक्सर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो आने वाले शहरियों का यही कहना है कि आज अपने कायद का किताब सुनेंगे और पैगाम देना चाहते हैं तमाम उन लोगों को जो कहते हैं कि आसिफ जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है, और उनका यही नारा है कि एक जरदारी सब पे भारी। जी ठीक है तनवीर, आप तो हमें स्टार गेट से आगाह कर रहे हैं। समग्र नुमाइंदे वकास बाकर भी हमारे साथ मौजूद है। वकास, आप चूंकि जलसा गाह में मौजूद हैं, यहाँ पर जो जियाले हैं, क्या उनके इल्म में ये बात आ गई है कि उनके कायद आसिफ अली जरदारी यहाँ पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद उनके दरमियान में मौजूद होंगे? तो अगर उनको ये पता चल गया है तो उनका जोश व खरोश बढ़ गया होगा। बिल्कुल सवाल ये भी हम अपने नाज़रीन को बताएंगे, लेकिन इस वक्त समझ की स्क्रीन पर मनाजिर दिखा रहे हैं जब आसिफ अली जरदारी लाउंज में मौजूद हैं। मुराद अली शाह उन्हें वेलकम कह रहे हैं, इसके साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी भी उनके हमरा मौजूद है। यानी पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क़यादत है वो इस वक्त लाउंज में आसिफ अली जरदारी के साथ मौजूद है। वालेहाना इस्तकबाल किया गया है, वेलकम किया गया है और अब गुफ्तगू हो रही है आसिफ अली जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दरमियान। पीपल्स पार्टी की क़यादत को यहाँ पर देखा जा सकता है। एक जानिब जियाले मौजूद हैं बड़ी तादाद में जो कि आसिफ अली जरदारी को वेलकम कहने के लिए बेकरार हैं, तो दूसरी जानिब जब आसिफ अली जरदारी तैयारे से बाहर आए हैं, लाउंज में मौजूद हैं, यहाँ मौजूद है पीपल्स पार्टी की क़यादत जो आसिफ अली जरदारी को वेलकम कह रही है। समा की स्क्रीन पर एक जानिब मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, मुराद अली शाह आसिफ अली जरदारी के हमरा मौजूद हैं, गुफ्तगू की जा रही है, वेलकम किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब अवाम जियाले बड़ी तादाद में आसिफ अली जरदारी को वेलकम कहने के लिए पार्टी परचम हाथों में लिए बाहर की जानिब मौजूद हैं। स्टार गेट हो, एयरपोर्ट के बाहर का हिस्सा हो, यहाँ पर हमें बड़ी तादाद में जियाले नजर आ रहे हैं। जलसा गाह में बड़ी तादाद में हमें लोग नजर आ रहे हैं, जबकि लाउंज का जो हम आपको मंजर दिखा रहे हैं उसमें मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जिसमें वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को बासानी देखा जा सकता है, इसके साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी को भी देखा जा सकता है। समा की स्क्रीन को हम दो हिस्सों में तकसीम करके आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, जहां एक जानिब इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां हैं, बड़ी तादाद में लोग तकरीबन 11-12 बजे से यहाँ पर मौजूद है कि आसिफ अली जरदारी जब बाहर आएंगे तो उनको जबरदस्त वेलकम किया जाएगा। और दूसरी जानिब देख सकते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत, पीपल्स पार्टी के रहनुमा यहाँ पर आसिफ अली जरदारी को वेलकम कहने के लिए आसिफ अली जरदारी के साथ लाउंज में मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल, लाउंज में हम देख सकते हैं कि मुराद अली शाह उनसे गुफ्तशनीद भी हो रही है। आसिफ अली जरदारी की पार्टी के सरबराह हैं, यकीनन कुछ न कुछ हिदायत भी मुराद अली शाह को वो जारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ साबिक सदर पाकिस्तान के दाएं हाथ पे बिल्कुल बराबर में उनके साथ बराजमान है सैयद यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, और यूसुफ रजा गिलानी के बराबर में है राजा परवेज अशरफ। इसके साथ साथ कायम अली शाह भी हमें यहाँ पर नजर आए, नवीद कमर भी यहाँ पर मौजूद है और कमर जमान कायरा भी यहाँ पर मौजूद है। तो यूं अगर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी मरकजी क़यादत ही आज अपने कायद को वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, एयरपोर्ट पर मौजूद है। निसार खोड़ो भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी ही मरकजी क़यादत उनके साथ आज मौजूद है। और मुराद अली शाह को आप देख रहे होंगे कि वो हिदायत भी जारी कर रहे हैं, सिक्योरिटी के जो यहाँ पर एहलकार हैं उनको कुछ हिदायत दे रहे हैं। और इसके साथ साथ इस लाउंज की सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ दूसरी विंडो में आप देख रहे हैं कि जो जियाले हैं उनका जोश खरोश भी काफी बढ़ता जा रहा है और बस उनको इंतजार है एक झलक अपने पार्टी कायद की। जी हाँ फवाद, जैसा कि आपने राजा परवेज अशरफ का जिक्र किया और यूसुफ रजा गिलानी का जिक्र किया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों साबिक वज़राए आज़म मौजूद हैं आज आसिफ अली जरदारी को वेलकम करने के लिए। पीपल्स पार्टी की टीम हम देख सकते हैं लाउंज के अंदर मौजूद है और बड़ी तादाद में मौजूद है। शेरी रहमान को भी देखा जा सकता है, इसके अलावा दीगर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसी वजह से शायद शिकवा को ना दिखाई देते हैं जो बाहर लोग मौजूद हैं, क्योंकि कुछ बदनज़मी भी हो रही है, लेकिन उन्हें संभालने के लिए बाहर कोई क़यादत मौजूद नहीं, क्योंकि तमाम के तमाम तो आसिफ अली जरदारी को वेलकम कहने के लिए लाउंज के अंदर ही मौजूद है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ मकामात पर हैं और मुसलसल हमें आगाह करें। भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। शैला बताइएगा क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल करण, इस वक्त जो खबर है वो ये है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी कारकुनान तैनात किए गए थे पीपल्स पार्टी की जानिब से, निहायत बदनज़मी हमें देखने में नजर आ रही है, क्योंकि अवाम जो है, जो कारकुनान है वो आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी कारकुनान है, जो सिक्योरिटी पर मामूर है, वो उन्हें आगे नहीं देना चाह रहे। लेकिन अवाम उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं जो कारकुनान है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभी भी, अगर मेरे कैमरा में दिखा सके, अभी भी धक्कम पेल जारी है। आप देख सकते हैं कि जो खारदार तारे लगाकर
यहाँ से रास्ता ब्लॉक किया गया था कि आवाम आगे ना जा सके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद है जो कि उन कारदार तारों को भी क्रॉस करके जो है वो आगे जा रही है। खेल मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर सिर्फ ये मर्द कारकुनान नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमने देखा कि जो खवातीन कारकुनान यहाँ पर आई थी उनके साथ भी यहाँ पर यही सलूक किया जा रहा था जो इस वक्त आप देख सकते हैं। सिर्फ हम अभी भी आपको दिखाएं कि लोग जो है वो यहाँ पर कारकुनान बहुत ही बिखरे हुए भी है क्योंकि उनको आगे नहीं दिया जाना चाह रहा, और जो सिक्योरिटी पर जो लोग तैनात किए गए थे वो कम पड़ गए हैं क्योंकि लोग जो है वो यहाँ पर कारकुनान उनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे हैं। अभी तो जो है वो काफिले आना शुरू हुए हैं और अभी से यही हाल है किरण। तो जब तक शाम तक जब आवाम पब्लिक यहाँ पर पूरी पहुंच जाएगी तब क्या होगा ये कहना जो है वो कबल वक्त ही होगा। लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी जो कारकुनान है जो उन्होंने रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहे हैं क्राउड को। अभी भी हम देख रहे हैं, अभी भी अगर मेरे कैमरा में दिखा सके तो बार बार ऐसे ही मंजर नजर आ रहे हैं। लड़ाई हो रही है, दकन पेल हो रही है, कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। और यहाँ पर जो कनाट से कॉर्डन ऑफ किया गया था और कनाट के ऊपर खारदार तारें भी लगाई गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो उस कनाट का और ना ही खारदार तारों का, क्योंकि कारकुनान जो आगे जाना चाहते हैं, जो काफी दूर से आए हुए हैं, जिनका ये कहना है कि वो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, उनकी सबकी यही कोशिश है कि किसी तरह से जो स्टेज बनाया गया है आसिफ अली जरदारी साहब के लिए उसके पास पहुंच जाए। तो यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी हम देख रहे हैं कि मुश्किल हुए हुए हैं, कारकुनान बिखरे हुए, और बार बार यही मनाजिर जगह जगह में देखने को मिल रहे हैं। पूरे अगर मेरे कैमरा में अभी भी आपको दिखा सके तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सूरत हाल है जो आपको अभी नजर आ रही है। पीछे की तरफ जो है वो सिक्योरिटी के बहुत सारे जिनके कारकुनान हैं वो भी खड़े हुए हैं, लेकिन बिखरे हुए जो कारकुन जो अंदर जाना चाह रहे हैं सिक्योरिटी के कारकुनान उनको संभालने से बिल्कुल कासिर है। और यही नहीं कि सिर्फ कारकुनान नहीं, खवातीन के साथ भी हमने यहाँ पर देखा है कि बहुत ज्यादा जो है वो बदतमीजी की गई है, उनको जो है वो अंदर जाने नहीं दिया गया। ठीक है शैला महमूद, आप वहां पर मौजूद ही रहिएगा और मुसलसल हम आपसे सूरत हाल मालूम करते रहेंगे। पिंडाल में मौजूद थी समा की नुमाइंदा शैला महमूद और हमें आगाह कर रही थी और वो यही कह रही थी कि चूंकि यहाँ पे कारकुनान जो जियाले हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और हर जियाला यही चाहता है कि वो किसी तरीके से सबकत ले जाए दूसरे जियाले के ऊपर और जहां पर स्टेज बनाया गया है पिंडाल में वहां तक वो पहुंच जाए और आसिफ अली जरदारी को बिल्कुल अपने सामने से देख सके, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क़यादत है कम से कम उसको बिल्कुल अपने सामने देख सके। लेकिन दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि जैसे ही आसिफ अली जरदारी तैयारे से वापस आए हैं और ऐसे में उन्होंने लॉन्च का रुख किया है और लॉन्च में हम देख रहे हैं कि मुराद अली शाह वजीर आला सिंध उनसे बातचीत कर रहे हैं, कुछ उनको हिदायत भी दे रहे हैं आसिफ अली जरदारी, और यकीनन उनको कुछ ना कुछ हिदायत उनकी जानिब से दी जा रही होंगी आज के हवाले से भी या मुस्तकबिल के हवाले से भी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम ही मरकजी क़यादत इस लाउंज में मौजूद है और अब से थोड़ी ही देर बाद आसिफ अली जरदारी यहाँ से बाहर जाएंगे और कारकुनान जो यहाँ पर मौजूद हैं बाहर की तरफ जो पिंडाल बनाया गया है वहां पर जलसे से खिताब भी करेंगे। और इसके लिए तैयारियां मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की जा रही थी और इन तैयारियों को हतमी शक्ल भी दे दी गई है और कुछ क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी के साथ मौजूद है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कुछ क़यादत है, कुछ अरकान हैं वो पिंडाल में भी मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कंट्रोल कर सके। लोगों का जोश खरोश बढ़ता ही जा रहा है चूंकि लोगों के इल्म में ये बात आ गई है कि उनके कायद आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद उनके दरमियान मौजूद होंगे। तो देखना ये होगा कि आसिफ अली जरदारी खिताब क्या करते हैं। असल चीज ये है कि आसिफ अली जरदारी जो यहाँ से पाकिस्तान से गए थे अब से कमोबेश 1.5 साल कबल काफी खतरनाक खिताब करके गए थे और जब वो खिताब उन्होंने किया था तो उनको जिला वतन होना पड़ा था, गो के वो खुद साख्ता जिला वतनी थी, लेकिन अब वो आते हैं तो आने के बाद क्या खिताब करते हैं ये बड़ी अहम चीज है। बिल्कुल, फवाद आए तो मुल्क की सियासत में हलचल मचाने, लेकिन हलचल इस वक्त कराची में हो रही है, बल्कि न सिर्फ हलचल बल्कि बदनज़मी भी हमें मुख्तलिफ मकामात पर दिखाई दे रही है। तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर उनकी जानिब चलते हैं। तनवीर, आप बताइएगा, ट्रैफिक की रवानी यकीनन बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही होगी, बदनज़मी जरूर आप देख रहे होंगे। जी बिल्कुल, स्टार गेट के इतराफ में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं क्योंकि जो स्टार गेट से पिंडाल को रास्ता जाता है, अगर मेरा कैमरामैन कहूँगा तो दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, बेनज़मी यहाँ पर नजर आती है, बदनज़मी नजर आती है क्योंकि गलत जगह पार्किंग की गई है। इंतजामिया की जानिब से 3 मकामात पर जो पार्किंग की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो जियाले हैं उनकी जानिब से यही गाड़ियाँ पार्किंग की गई, जिसकी वजह से गाड़ियों की तवील कतारें लग गई, जिसकी वजह से जो
चारा पैदल से गुजरने वाले शहरी हैं उन्हें भी मुश्किलात पेश आ रही है। और यहाँ पर अगर कारकुनान की बात करें तो सियासी गेमा भी तो अरूज में नजर आ रही है। कारकुनान का जोश बुलबुला भी हर वक्त गुजरने के साथ जा रहा है। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, स्टार गेट पे अगर बदनज़मी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉकेज हो गया है, तो वो तमाम लोग जिन्होंने अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेनी है वो तो अपनी फ्लाइट मिस नहीं करेंगे, उनके लिए क्या होगा? क्या कोई रूट मैप दिया हुआ है, कोई प्लान दिया हुआ है, वो आगे कैसे निकलेंगे? और देखिए, अगर आप शहर से आ रहे हैं, सदर से या गुलशन इकबाल से, तो स्टार गेट के बाद कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है, क्योंकि स्टार गेट ही आपको मुतबादिल रास्ता फराहम करता है एयरपोर्ट जाने के लिए। अगर आप स्टार गेट को पार या क्रॉस नहीं करते तो आप एयरपोर्ट नहीं जा सकते। उसके बाद एक ही मुतबादिल रास्ता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा पड़ता है। शाफिसल कॉलोनी से होते हुए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए कायदाबाद जाना पड़ेगा। अगर किसी ने जाना है तो इसी तरीके से कायदाबाद से वापस एयरपोर्ट आना पड़ेगा। या दूसरा रास्ता है अनीपा सपूरा चौरंगी से होते हुए वहाँ, लेकिन वो रास्ते बहुत ज्यादा तब्दील हो जाते हैं और शहरियों को जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दावे किए गए, बुलंद दावे किए गए थे कि उनका कहना था कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं होने देंगे, लेकिन उनके तमाम दावों की धज्जियां बिगड़ दी गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव नजर आ रहा है और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, आप बता रहे हैं कि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस ने जो प्लान तरतीब दिया था वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जलसे में शिरकत के लिए शुरका रैलियों की सूरत में शहर से और अंदरूने सिंध से भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और समग्र नुमाइंदे वकास बाकर भी हमें अपडेट करेंगे। वकास, आप बताइएगा कि पिंडाल में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के शरीफ चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के इस्तकबाल के लिए पिंडाल सजाया गया वो अब जियारों से भर चुका है। स्टेज की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सरजमान कायरा, कौमी असम्बली में कायदे बेख्तराब खुर्शीद शाह, निसार खोड़ो, शेरी रहमान, फरतुल्लाह बाबर समेत तमाम मरकजी कायदीन जो स्टेज के लिए बनाए गए ट्रक है उस पर पहुंच चुके हैं। जियालों की बहुत बड़ी तादाद है जो आ रही है और स्टार गेट से काफिलों की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है। स्टेज और कारकुनान के दरमियान जो पंडाल के दरमियानी हिस्सा है वहां पर पहुंचने के लिए कारकुनान एक दूसरे से तगोदो कर रहे हैं। एक सूरत हाल जो यहाँ पर देखी जा रही है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा वीआईपी कल्चर का शिकार वो एक अलग रास्ते से आए और जियालों के लिए अलग रास्ता बनाया गया। यही वजह शायद है जिसकी वजह से जलसेगाह में बदनज़मी भी देखी जा रही है। ताहम जैसे ही यह ऐलान किया गया कि आसिफ अली जरदारी कराची पहुंच चुके हैं तो जलसेगाह में मौजूद जियालों का जोश खरोश भी दीद नहीं था। स्टेज से लेकर जलसेगाह में मौजूद पंडाल में जियालों ने सबने जो है उसका वालियाना इस्तकबाल किया, नारे लगाकर जो है वो खुश आमदीद कहा। बताया जा रहा है अब से कुछ देर बाद जो है वो आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर मरकजी सूबाई रहनुमाओं के हमरा स्टेज पर पहुंचेंगे और फिर जलसे का बाकायदा आगाज होगा। आज आसिफ अली जरदारी की जून 2015 के बाद वतन वापसी हुई है। एक ऐसी तकरीर जिसमें आसिफ अली जरदारी ने यह ऐलान किया था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे और आपको 3 साल के लिए रहना है और उसके बाद चले जाना है, हमने यहीं रहना है। एक ऐसी तकरीर के बाद करीबन डेढ़ साल के वक्फे के बाद आसिफ अली जरदारी वतन वापस आ रहे हैं और जब वतन वापस आए हैं तो आसिफ अली जरदारी के करीबी साथियों के घरों पर भी जो छापे लगे तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो सियासी तौर पर भी जो है जिसका आज आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी पर जो बड़ा असर पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी से जियाले और उनके रहनुमा बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तब मुल्की सियासी मंजरनामे पर बिल्कुल कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, ये तो हम मनाजिर में देख ही रहे हैं कि पूरी की पूरी क्रीम आसिफ अली जरदारी को वेलकम करने के लिए पहुंच गई। आप ये बताइएगा, क्योंकि आप ओल्ड टर्मिनल में मौजूद हैं तो यकीनन खबरें आपके पास आ रही होंगी, आसिफ अली जरदारी यहाँ से बाहर कब तक निकलेंगे? जी बिल्कुल, ओल्ड टर्मिनल समा की स्क्रीन पर मनाजिर हम आपको दिखाएं तो वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सबसे पहले उन्हें सिंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ किया। वकास बाकर, हम आपसे तफसील मजीद जानेंगे कि आसिफ अली जरदारी कितनी देर में बाहर निकलेंगे यहाँ से और कब जियालों के बीच में पहुंचेंगे, क्योंकि जियाले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी का। लेकिन इस वक्त आसिफ अली जरदारी अभी मौजूद हैं अपने रहनुमाओं के हमरा और उनसे डिस्कशन जारी है। यकीनन मुल्की मामलात पर और आने वाली सियासत पर बात हो रही होगी। शैला महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। शैला, अभी आपने दिखाया था खवातीन भी काफी परेशान नजर आ रही थी, पंडाल में जो लोग थे बदनज़मी का शिकार बहुत ज्यादा हो रहे थे। अब बताइएगा, कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हुई है? जी नहीं किरण,
बिल्कुल भी सूरत हाल अभी भी बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं हुई है, अभी भी बिल्कुल वही सूरत हाल है। अभी भी जो हम देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल पेश आ रही है, जो इनके कारकुनान हैं वो संभालने से नहीं संभल रहे हैं। हर किसी की यही कोशिश है कि वो किसी तरह से स्टेज तक, जो स्टेज आसिफ अली जरदारी साहब के लिए बनाया गया है, वो वहां पर चला जाए। अभी भी अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के जो इनके कारकुनान हैं वो समझा रहे हैं इनको, लेकिन ये समझने से नहीं समझ रहे हैं। और यहाँ पर जो कनातें लगाई गई हैं और इसके साथ साथ जो जितने भी जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कारदार तारे लगाकर इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि यहाँ पर इस हिस्से को कॉर्डन ऑफ किया जाए ताकि जो है यहाँ से जो है वो लोग ना जा सके, लेकिन तमाम तर कोशिशें जो वो नाकाम हो गई हैं। और हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पर खवातीन भी जा रही हैं, उनका भी बिल्कुल कोई एहतराम नहीं किया जा रहा, और जिस मुश्किल से वो जा रही है वो बिल्कुल हमने मनाजिर जो है वो अक्सबंद भी किए हैं, हमने आपको यहाँ पर दिखाया भी कि किस तरह से, किस मुश्किलात से जो है वो यहाँ से खवातीन को अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है। और ये जो इन्होंने यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया था इसको नहीं हटाया जा रहा। हालांकि अवाम ने जो है वो अपनी मदद के तहत हमने देखा कि गुत्थम गुत्ता हुए हैं, वो खारदार तारों की भी परवाह नहीं की है और वो भी तोड़ते हुए जो है वो आगे निकल गए हैं। लेकिन अभी भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे साथ ही मौजूद है शैला समा की स्क्रीन पर हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। अब गाड़ियां बाहर की जानिब आना शुरू हुई हैं और ऐसा लगता है कि आसिफ अली जरदारी अब बाहर की जानिब आ रहे हैं और जियालों के बीच में होंगे। जिस तरह से प्रोटोकॉल है उससे लगता तो ऐसा है कि शायद आसिफ अली जरदारी बाहर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त साथ ये बात नहीं की जा सकती। लेकिन प्रोटोकॉल और जिस तरह से लोग दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से गाड़ियां बाहर आ रही हैं, तो शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी अब टर्मिनल से बाहर की जानिब आ रहे हैं, वो लाउंज से बाहर की जानिब आ रहे हो। आसिफ अली जरदारी तकरीबन 3:15 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। अब से कुछ देर पहले मौजूद थे पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ, और अब जो गाड़ियां हमें बाहर आती दिखाई दे रही हैं, शायद ऐसा लगता है कि आसिफ अली जरदारी अब लाउंज से बाहर आ गए हैं। वकास बाकर बताइएगा कि आपके पास ऐसी खबर है? जी हाँ, ये प्रोटोकॉल देखकर तो ये अंदाजा होता है कि कोई बड़ी शख्सियत यहाँ पर आ रही है, लेकिन अभी कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता कि आया आसिफ अली जरदारी लाउंज से बाहर आ गए हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब से कुछ ही देर बाद, अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है कि आसिफ अली जरदारी जियालों के दरमियान में मौजूद होंगे। आप देख भी सकते हैं कि गाड़ियों की आमद